السلام علیکم ناظرین، پاک جذبو نیوز کے ساتھ میں ہوں آشان اشفاق۔ پیش کرتے ہیں تازہ ترین اپڈیٹس۔ سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ، ماس ٹرانزٹ، ایکسائز، ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ آج ہم افسردہ ہیں کہ سندھ کے ایک صحافی نصر اللہ کڈانی کو شہید کیا گیا۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا اور یہ واقعہ اس سوچ کی کڑی تھی جو آزادی صحافت کو دبانا چاہتی ہے۔ اس سوچ کے بارے میں سب کو معلوم ہے اور یہ سوچ پوری دنیا میں ہے، تاہم حکومتوں کا کام ہے کہ اس سوچ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ گھوٹکی پولیس اور DIG سکھر کی کوششوں سے شہید صحافی نصر اللہ کڈانی کے قتل کیس میں 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کوئی بھی ہوگا اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ کیس کی شفاف تحقیقات ہوگی اور اس سلسلے میں میڈیا کو باخبر رکھا جائے گا۔ آج ہم شہید صحافی کے ورثاء کو امدادی چیک دے رہے ہیں۔ پیسہ کسی کی جان کا نام البدل نہیں ہوتا۔ ہمیں شہید کے اہل خانہ سے پوری ہمدردی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر شہید صحافی کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے کا امدادی چیک دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک کاز کے لیے کمٹمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت آزاد اور شفاف صحافت چاہتی ہے۔ اس موقع پر سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات شرجیل انعام میمن نے حکومت سندھ کی جانب سے شہید صحافی نصر اللہ کڈانی کے اہل خانہ کے لیے 1 کروڑ روپے کا امدادی چیک ان کے بھائی محمد بخش کڈانی کو سونپ دیا۔ شہید صحافی نصر اللہ کڈانی کے قتل کا ملزم گرفتار۔ گھوٹکی پولیس نے تھانہ میرپور ماتھولو کی حدود سے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس سلسلے میں SSP سمیر نور کا کہنا تھا کہ ملزم کی اصغر ولد ہوت لونڈ کے نام سے شناخت کی گئی ہے۔ گرفتار ملزم کے ساتھی برکت لونڈ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ عبداللہ لونڈ نامی شخص نے ملزمان کی سہولت کاری کی ہے۔ 2 ملزمان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ SSP کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی۔ واقعے میں استعمال ہونے والا پسٹل اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی ہے۔ طلاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کے چینل کے تھرو پہلے بھی میں نے کافی بھائیوں کو یہی بتایا ہوا ہے کہ پولیس موقع پہ پہنچ گئی تھی، ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ کروائی پہلے گھوٹکی ہاسپٹل میں، اس کے ساتھ پولیس ان کے ساتھ رحیم یار خان ہاسپٹل میں بھی چلی گئی۔ ہمیں لگا کہ ان کی کنڈیشن سیریس ہے تو ہم نے فوراً ریفر کروایا۔ جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا جس کو ہم نے سالو کرنا تھا کسی بھی صورت میں۔ الحمدللہ DI صاحب کی ہمارے پاس گائیڈنس تھی، سندھ گورنمنٹ کی ڈائریکشن تھی، پولیس سینئر کمانڈ تھی کہ اس کیس کو آپ نے جائے تکمیل تک پہنچانا ہے اور جو بھی اس میں ملزمان ملوث ہیں ان سب کو گرفتار کرنا ہے۔ اس کے نتیجے کے لیے DI صاحب نے ایک GIT تشکیل دی جس کا سپروائزر میں تھا، میرے ساتھ 2 DSP صاحبان تھے اور 2 SHO صاحبان۔ ہم نے اس کی انویسٹیگیشن اسٹارٹ کی۔ انویسٹیگیشن ہم نے ماڈرن ڈیوائسز، ٹیکنالوجیکل بیسس، جیو فینسنگ، CDR انالیسز اور CCTV فوٹیج انالیسز سے ہم نے اسٹارٹ کی۔ اس کے ساتھ ہمیں جو قانونی شہادت خفیہ اطلاع انفارمر اس کے تھرو بھی ہم نے انفارمیشن گیدر کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ ہمیں تھرو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہمیں کامیابی ملی۔ ایک جو ملزم ہے شوٹر ہے وہ ہم نے اریسٹ کیا، اس کا نام ہے اصغر ولدیت ہوت لونڈ، یارولنڈ کا رہائشی ہے، اور اس سے موٹر سائیکل جو کرائم میں انوالو ہوئی ہے وہ ہم نے ریکور کی ہے، اس سے ویپن برآمد کیا ہوا ہے، اس کے موبائل بھی ہم نے ریکور کیے ہیں، اور ٹیکنالوجیکل بیسس پہ اس کے انٹروگیشن پہ جو دوسرا ملزم اس کے ساتھ ہے اس کا نام ہے برکت ولد ہوت لونڈ، وہ بھی یارولنڈ کا رہائشی ہے، اور جو ان کا فیسیلیٹیٹر ہے اس کا نام ہے عبداللہ ولد احمد علی لونڈ۔ تو اس میں سے ہم نے ایک گرفتار کر لیا ہوا ہے، باقی 2 شوٹر جو ہے جس کا نام میں بتا چکا ہوں برکت، اس پہ ہم نے ریڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی بھی جلد گرفتاری ہو جائے گی۔ جو اس کا فیسیلیٹیٹر ہے عبداللہ، انشاءاللہ اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر ربینہ خالد نے سکھر اور خیرپور کے متعدد سینٹروں کا تفصیلی دورہ کیا اور وہاں عوام کو دی جانے والی سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل سندھ ذوالفقار شیخ، ڈائریکٹر سکھر ذوالفقار ابڑو اور دیگر افسران موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین ربینہ خالد نے عوام سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا
अपने दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम में शामिल ख़वातीन को इज्जत और तकरीम के साथ उनकी माली मदद की जाए। माफिया और कटौती करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आइंदा मुस्तहिक ख़वातीन को ATM कार्ड के तवस्सुत से रकूम की अदायगी के लिए मनसूबा बंदी की जा रही है। मुख्तलिफ बैंकों से बातचीत जारी है। बहुत जल्द इस काम को बेहतर बना लिया जाएगा। कौमी न्यूज़ मीडिया ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद हुसैन भट्टी, डी न्यूज़ टाइम के चीफ एग्जीक्यूटिव जमशेद शेख, कौमी न्यूज़ के एडिटर जाफर अली, समाजी वर्कर अलादिया कुरैशी की रोजनामा पाक सोच के चीफ एडिटर जुल्फ़कार अली सोलंकी से न्यूज़ ऑफिस हैदराबाद में मुलाकात। उस मौके पर जुल्फ़कार अली सोलंकी ने कहा कि हम सब मिलकर मजलूमों की आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुंचाने के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और साथ में सहाफ़ियों के हुकूक के लिए भी जिद्दोजहद करेंगे। मोहम्मद हुसैन भट्टी ने कहा कि सिंध के सहाफ़ियों को इंतज़ामिया की या हुकूमत की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं। उसके बाद जो भी हम अपने कलम के ज़रिए मजलूमों से होने वाले नाइंसाफ़ियों को आला ऐवानों तक पहुंचाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आवाम के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आवाम की आवाज़ को अच्छे तरीके से ऐवानों तक पहुंचाकर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। थाना इब्राहिम हैदरी में खुली कचहरी में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने अपना दो टोक मौक़िफ़ बयान कर दिया। उनका कहना था कि मेरा पुलिस वाला किसी भी ब्लैकमेलर सहाफ़ी को भत्ता नहीं देगा। किसी सहाफ़ी को अगर उसका इदारा तनख्वाह नहीं देता तो बराए मेहरबानी वो अपना इदारा तब्दील करे। SSP काशिफ आफ्ताब अब्बासी का मजीद कहना था कि अगर कोई सहाफ़ी किसी जराइम पेशा की सरपरस्ती में मुलविस पाया गया या किसी जराइम पेशा के लिए मेरे महकमे को ब्लैकमेल किया तो फिर वो भत्ता और दहशतगर्दी की FIRs के लिए तैयार रहे। फिर जिसने जो लिखना है वो लिखता रहे। मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। कचहरी में मौजूद सहाफ़ियों से गुजारिश करता हूँ कि अपने अंदर की काली भेड़ों को निकालें और उनको समझाएं कि जराइम पेशा की सरपरस्ती करना छोड़ दें। बावसूख ज़राए के मुताबिक थाना इब्राहिम हैदरी की हुदूद में जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती में मुलविस सहाफ़त का लबादा ओढ़े ब्लैक मेलर्स की लिस्ट तैयार हो चुकी है जिस पर बहुत जल्द कार्रवाई मुतवक्के है। ये भी डब्बा अच्छा है, काम अंदर माल वही है, तो भाई फिर लिखना जो तुम्हारा दिल करे हमारे बारे में भी। तो रुकावट तो नहीं है, पेन तो आपके पास है ना, मोबाइल फ़ोन आपके पास है, लेकिन भाई आपके प्रोफेशन से वाबस्ता अफराद ने भी जिन जिन जराइम पेशा पे हाथ रखा हुआ है, मेहरबानी करके उन्हें मशवरा दे कि जब मैं भत्ते की और दहशतगर्दी की FIRs देनी शुरू करूँगा फिर मैं नहीं देखूँगा। फिर आप लिखें जो आपका दिल करता है, फिर ब्लैकमेल नहीं होगा आपसे। भाई अगर सियासी क़यादत क्लियर है, हुकूमत क्लियर है, सियासी नुमाइंदे क्लियर हैं, IG साहब क्लियर हैं, उसके बाद एडिशनल IG क्लियर हैं, DIG क्लियर हैं, मैं क्लियर हूँ, फिर आप क्या बेचते हैं भाई? और आपके वाले को मोकल किस लिए दूंगा फिर? मोकल निष्ठा, अपना काम करें भाई। अगर गलत इदारे में तनख्वाह नहीं मिलती चेंज करें भाई, किसी और इदारे से वाबस्ता हो जाएं, मुफ्त वाले से जान छुड़ा लें, ठीक है। लेकिन अगर भाई सिर्फ मोबाइल पे और मतलब खाली उस चीज़ के ऊपर आपने मतलब नौकरी ली है तो गलत जगह चले गए आप। फिर किसी दूसरे महकमे की बीट ले लें, पुलिस वाली में ये नहीं चलने दूंगा भाई। सही है, मेरा पुलिस वाला किसी आपके भाई को भत्ता नहीं देगा। आप हमारा साथ देंगे। अगर अपने दफातर में भेजने वाले को निकाल रहा हूं, आपके वाले से ताउन क्यों करूंगा भाई? मैं नाम नहीं लेता भाई, लेकिन आज एक किसी बंदे को हमने पकड़ा एक केस में, आपके एक साथी ने कॉल की कि नवाजिश कर दें। मैंने कहा भाई अगर कानून में कोई नवाजिश होगी तो हो जाएगी। SSP सक्कर अमजद अहमद शेख की सरबराही में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के सीनियरिटी की बुनियाद पर सीनियर पुलिस एहलकारों को उनके अगले ओहदे पर तरक्की दे दी गई। प्रमोट होने वाले एहलकारों में 135 कांस्टेबल, जिसमें 12 ड्राइवर कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के ओहदे में तरक्की दी गई।
SSP अमजद अहमद शेख की सरबराही में कायम डिपार्टमेंटल 135 एहलकारों को प्रमोशन कमेटी ने सीनियरिटी की बुनियाद पर सीनियर अगले ओहदे में तरक्की की मंजूरी दे दी गई, जबकि डिपार्टमेंटल 4 एहलकारों को मुख्तलिफ सजाओं और दीगर प्रमोशन पॉलिसी के तहत ज़ेर अल्तवा मामलात की बिना पर अगले ओहदे पर तरक्की मौखर कर दी गई। SSP सक्खर अमजद अहमद शेख ने पुलिस जवानों को अगले ओहदे पर तरक्की मिलने पर उन्हें मुबारकबाद दी। उस मौके पर उनका कहना था कि आपकी नौकरी एक इबादत है क्योंकि आप आवाम के मुहाफिज हैं। आप तमाम पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आप आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशां रहें और अपनी नौकरी को इबादत समझकर अदा करेंगे। पुलिस एहलकार गुज़िश्ता कई सालों से अपने अगले ओहदे में तरक्की के लिए मुंतज़िर थे। तरक्की पाने वाले जवानों में खुशी की लहर। SSP सक्खर अमजद अहमद शेख की हिदायत पर सक्खर पुलिस का समाजी बुराइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना ए सेक्शन शौकत आरई का मुख्फी इतला पर न्यू कोर्ट के करीब एक्शन गोदाम पर छापे के दौरान भारी मिकदार में गुटखा मावा छालिया बनाने वाला मटीरियल बरामद किया गया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। छापे के दौरान गोदाम से भारी मिकदार में गुटखा मावा छालिया की बोरियां और बनाने वाला सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल्ला बंदानी और सलमान राजपूत शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उस सिलसिले में SSP सक्खर अमजद अहमद शेख ने पुलिस पार्टी की बेहतरीन कार्रवाई पर शाबाशी का पैगाम समेत मजीद कार्रवाइयां तेज करने के अहकामात जारी किए। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर चेयरमैन हाजी नवाज अली बिरोही ने मेयर कराची से मुलाकात में कहा कि पानी जिंदगी की बहुत अहम ज़रूरत है। इस जदीद दौर में भी हमारे इलाके के अवाम अपने इस्तेमाल के लिए दूर दराज से पानी भर कर लाते हैं, मगर हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि उनके तमाम मसाइल जल्द अज जल्द हल करें। इसी वजह से उन तमाम गोठों में वाटर स्कीम और टैंकर के जरिए पानी पहुँचाने को यकीनी बनाया। साथ ही ईद उल अज़हा के हवाले से पेश आने वाली सफाई सुथराई और अलाशें उठाने के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध गवर्नमेंट और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से तमाम मसाइल गोश गुजार किए। उस मौके पर मजीद कहा कि हमारे ज़्यादातर इलाके देहात पर मुश्तमिल हैं। यही वजह है कि हमारे मसाइल भी दूसरे टाउन से मुख्तलिफ हैं, मगर हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी गरीब परवर पार्टी है और हमेशा गरीब आवाम का साथ दिया है। और आज हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची का। उन्होंने हब कैनाल से एक और लाइन की मंजूरी देकर शहर कराची को एक तोहफा दिया है, जिससे आवाम को बड़ी सहूलत मिलेगी और गरीब आवाम जो टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं, उनको भी इस माफिया से निजात हासिल होगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मेयर कराची से मुलाकात में किया। उस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, वाइस चेयरमैन राना आरिफ, UC चेयरमैन जुम्मन दरवान और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद हेस्को तर्जुमान के मुताबिक हैदराबाद शहर में बारिश के दौरान 34 अदद फीडर की बिजली ट्रिप करने के बाद की सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेस्को मोहम्मद रोशन ओठो पावर कंट्रोल सेंटर पहुंचकर बिजली बहाली के काम की मुकम्मल सूरत हाल मालूम करने के बाद हेस्को चीफ ने हिदायत दी कि तमाम लाइन स्टाफ मुकम्मल सेफ्टी कवानीन के तहत बिजली बहाली का काम सर अंजाम दें। उस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जुल्फिकार अली मेमन, SE ऑपरेशन सर्कल हैदराबाद एजाज अहमद शेख, मैनेजर CM&O अमीर अहमद मेमन, इंचार्ज PDC गुलाम सरवर उन्नड़ जावेद अहमद शेख भी मौजूद थे। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि गर्मी की शिद्दत में कमी आ सके। इन ख्यालात का इज़हार असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद सऊद अहमद लुंड ने यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से लतीफ़ाबाद बड़ी चौक यूनिट नंबर 5 और 6 के संगम में अपने दस्त मुबारक से नीम का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए किया। उन्होंने कहा कि यूथ वेलफेयर सोसाइटी सही मानों में फलाही काम कर रही है और इंसानियत की फलाह बहबूद के कामों में भरपूर अंदाज में काम कर रही है। उस मौके पर मुख्तार कार लतीफ़ाबाद शेर अली ने कहा कि दरख्त माहौल को दुरुस्त रखने और खूबसूरती बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। डायरेक्टर पार्क्स बल्दिया शिराज अली लगारी के दरख्त फिजाई आलूदगी के खात्मे में अहम किरदार अदा करते हुए उन्होंने कहा कि मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो खुद शजरकारी में दिलचस्पी रखते हैं और काशिफ शोरो की जानिब से यूथ वेलफेयर को 100 पौधे देने का ऐलान करता हूँ। बानी यूथ वेलफेयर सैयद फहीमुद्दीन ने कहा कि यूथ वेलफेयर अरसा 36 सालों से इंसानियत की खिदमत अपनी मदद आपके तहत अंजाम दे रही है और हमारी
ویلفیئر نے بے شمار پودے لگائے ہیں جو آج درخت بن چکے ہیں۔ یوتھ ویلفیئر تعلقہ لطیف آباد کے چیئرمین دانش گل نے کہا کہ ہم ہر بہار کے موسم میں شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہیں اور وافر تعداد میں پودے لگاتے ہیں۔ جب وہی پودے درخت بنتے ہیں اور مسافر لوگوں کے لیے سائے کا کام کرتے ہیں، لیکن اچانک درختوں کی کٹائی کر دی جاتی ہے۔ ایڈیشنل SHO تھانہ بی سیکشن آفتاب میمن نے کہا کہ پودے گرمی کی شدت کو کم کرنے کا واحد ذریعہ ہیں۔ شجرکاری مہم میں مرکزی صدر علی بخش پٹھان، نائب صدر اول سید عبد الوہاب نوری، نائب صدر دوم وہاب الدین، چیئرپرسن انیلا میوش، عمران بٹ، علاوہ UC 135 اور UC 136 کے چیئرمینوں کے علاوہ معزز شہریوں نے بھی حصہ لیا اور شجرکاری مہم کو خوشائن قرار دیا۔ سبسکرائب کریں پاک جذبو نیوز کو اور باخبر رہیں ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو سے۔